morning, students. Good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. Very Good morning, sir. good morning. कैसे हैं आप लोग? Good, sir. How are you? Yeah, I'm good. So, shall we start? सारे बच्चे आ गए? Start करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, please give your attendance in a chat box. Write your name and roll number or email ID so that give your attendance in a chat box, guys. So, so guys, basically हम लोग को material costing पर I was teaching material costing, right? And हमने काफी टॉपिक इसमें कवर कर लिए थे. So today I will discuss very important topic for your exam point of view also. And yeah, this one, method of valuation of inventories. Methods of valuation of inventories. सारे बच्चे आ गए बेटा? Wait a minute. I'm giving 1 minute more. Ask your friends, join as soon as possible. Otherwise, बीच में सेशन खराब होने के चांसेस होते हैं. So, guys, today I'm going to teach you very important topic that is method of valuation of inventories, methods of valuation of inventories, right? So, the following of inventories valuation are in use. First is first in first out method, guys. First is your first in first out method, that is known as FIFO method, and second one is your last in first out method, that is the LIFO method, right? And third one is your simple average price method. Fourth one is your weighted average price method. Okay, now, right, this is the what is the actual meaning of the first in first out method. It means under this method, the material under this method, the material received first are to be issued first when material requisition is received. Material left, what does it mean? Under this method, it is saying under this method the material is received. The material is received first. जो material पहले आएगा मेरे परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो तो उसे पहले निकालेंगे, उसके बाद दूसरे गुड्स की मतलब बारी आएगी, ठीक है. सो इट इज सेइंग अंडर दिस मेथड द मटेरियल इज रिसीव्ड फर्स्ट आर टू बी इश्यूड. जो पहले गुड्स आया होगा पहले उसको निकालेंगे, ठीक है. व्हेन मटेरियल रिक्विजिशन इज रिसीव्ड, मटेरियल लेफ्ट एज क्लोजिंग स्टॉक विल बी एट द प्राइस ऑफ लेटेस्ट परचेज. And what is the advantages? What are the advantages? Number one is simple to understand and easy to operate. Second one, in case of the falling prices, this method gives better results. And third important advantages of this method is closing a stock of material will be represented very closely
at a current market price, right? And second one is your last in first out method. It is also very very important. Just try to understand the concept. Last in first out method. Under this method, the material कहता है material purchased. Material हमने purchase किया last में underline कर लेना. Under this method, the materials purchased last are to be issued first. जो when material requisition is received, क्या मतलब हुआ कि जो भी लेटेस्ट रेट का मेरे गोडाउन में मेरे डिपार्टमेंट में माल आया होगा पहले मैं उसको इश्यू करूंगा. लास्ट इन अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लेट आया होगा उसको पहले निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अंडर दिस मेथड द मटेरियल परचेज लास्ट आर टू बी इश्यूड फर्स्ट when material requisition is received. In other words, it is a method of pricing the issues of materials in the reverse order in which they are purchased, right? बात समझ में आ गई? So last in first out and first out method, and I'm repeating once again, guys. Under this method, material purchase are to be issued first when material requisition is received. In other words, it is a method of pricing the issues of material in the reverse order in which they are purchased, right? What are the advantages of the last and first out method? The cost of material issued will reflect the current market price approximately. Such a trend in price of material enable the matching of cost of production with the current sales revenue. Second advantages of the last and first out method is during the inflation, last LIFO will tend to show the correct profit and thus there is some tax savings. Third one is your simple average price method. After theoretical part, I will explain the numerical part also. So simple average price method. Under this method, material issued are valued at a average price which is calculated by the dividing the total of all units rate by the number of unit rate. So material issue price equal to total of unit price of each price divided by total number of purchase. What are the advantages of the simple average price method? Useful when purchase price do not fluctuate considerably. Second one is your simple to understand and easy to operate, right? Fourth one is your weighted average price method. This method gives due weightage to quantities purchased and the purchase price to determine the issue price. What is the formula? Formula for a weighted average price कैसे निकालते हैं बच्चे? Formula is weighted average price equal to total cost of material in stock divided by total quantity of material. And what are the advantages of the weighted average price method? It is smoothen the price fluctuation, if any, due to material purchase. Second one is your issue price and need not to be calculated for each issue unless new lot of material is received. So this is all about the theoretical part, right? Now we will do the numerical part, numerical question. Please note down this numerical question. Right, the question is saying, guys, the question is saying from the following transaction, we will, this is the numerical solution, which first of all, I will explain the FIFO price method, then I will explain the LIFO price method, then I will explain also weighted average price method, right? So first of all, note down this question. So question note down करें guys. From the following transaction, I'm repeating guys question, note करें please, very very important. From the following transaction, calculate value of closing stock
and cost of goods sold by applying LIFO and weighted average method. WAM stand for weighted average method under perpetual and periodical inventory system respectively. Under perpetual and periodical inventory system respectively, डेट 1 जनवरी को क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक आपका है 1000 यूनिट, प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 20 रुपए। 10 फरवरी को परचेज किया 500 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट। 13 मार्च को फिर परचेज किया 400 यूनिट 400 यूनिट परचेज किया है और एक यूनिट की कीमत कितने रुपए बच्चे, 22 रुपए। उसके बाद 20 मार्च को सोल्ड करा है 1200 यूनिट, ठीक है, रेट पर यूनिट गिवन नहीं है, आप खुद दिमाग लगाएंगे। 12 मई को बेटा परचेज किया 400 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। 30 जून का सोल्ड करा है 500 यूनिट, ठीक है, नोटेड डाउन, नोट कर लिया, आगे बढ़े। हेलो अनुकृति, हेलो Sir, can you please switch over to the question? Thank you, sir. बेटा बीच में क्लास छोड़ के नहीं जानी है, मैं पूरा तीनों टॉपिक कवर करा के जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द FIFO मेथड, देन आई विल एक्सप्लेन द LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा जल्दी नोट करें प्लीज। डन Done, sir. So, solution beta, cautious solution. Guys, listen carefully, very very important. Don't take lightly. Note down in your notebook. Pick up the notebook and start doing, start solving. Don't take lightly, please. ये टाइम वापस नहीं आने वाला है वंस, ठीक है, टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें सॉल्यूशन नोट करें गाइस। स्टोर लेजर कार्ड पहले लिखें एंड इसको कैसे बनाना है, मैं आपको ऐसे नहीं बनाना है इसमें, मतलब आपको कैसे सॉल्यूशन ऐसे करके बनाना है इसको। इसका फॉर्मेट बेटा ऐसे बनेगा, ऐसे वाले खड़ा, ऐसे नहीं बनाना है सॉल्यूशन, ऐसे कॉपी को ऐसे करें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्पेस कम पड़ेगा, अगर ऐसे बनाएंगे तो आपकी स्पेस कम पड़ेगा पेज पर, तो सॉल्यूशन बेटा आ नहीं पाएगा। आप ऐसे करके सॉल्यूशन करें, ऐसे फॉर्मेट पे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो ठीक है, पहले लिखें, हेडिंग बनाएं, हेडिंग लिखें स्टोर लेजर कार्ड FIFO प्राइस मेथड। FIFO प्राइस मेथड लिखें बेटा, जैसे फॉर्मेट बनाया है ऐसे ही फॉर्मेट बनाना। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीज, ऐसे पेज पे नहीं बनाना है, खड़ा पेज नहीं रखना है, इसको इस फॉर्मेट में कर लें, ऐसे करके बनाएं, ठीक है। पहले लिखें डेट पर्टिकुलर लिखें, ठीक है, बात समझ में आ गई। रोशना समझ में आ गई बात कैसे करना है? हेलो Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके वेरी नाइस, ठीक है। पहले लिखें डेट पर्टिकुलर, परचेज की बेटा तीन परचेज के अंडर में 3 कैटेगरी, क्वांटिटी रेट अमाउंट। उसके बाद इशू में लिखें क्वांटिटी रेट अमाउंट। उसके बाद बेटा बैलेंस के नीचे 3 हेडिंग है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। डन। फॉर्मेट बना लिया, अच्छे से बनाना है, यूज द पेंसिल एंड स्केल, ठीक है। I'm repeating once again, we are solving this
With the help of, first of all, we will apply the FIFO price method. First in, first out. Format is date, particular, purchase का क्वांटिटी रेट अमाउंट, इश्यू में क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है था तो लिखेंगे 1 जनवरी बैलेंस बीडी, बैलेंस में लिखें 1000 यूनिट, रेट था 20 रुपए पर यूनिट का, रेट था बेटा 20 रुपए पर यूनिट, रेट था 20 रुपए पर यूनिट। तो बेटा कितना हो गया 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20,000, 20,000 रुपए। 10 फरवरी को बेटा क्या हुआ, परचेज किया इन्होंने, 10 फरवरी को क्या किया है, परचेज। 10 फरवरी को बेटा क्या किया, परचेज 500 यूनिट इन्होंने परचेज किया है और एक यूनिट की कीमत कितने रुपए है, 25 रुपए। 500 यूनिट परचेज किए हैं 10 फरवरी को और एक यूनिट की कीमत कितने रुपए, 25 रुपए। तो व्हाट इज द अमाउंट, 500 यूनिट 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू हाउ मच, कितना हुआ बेटा कौशल, कितना हुआ 12,500। 400। Nothing, sir. So I'm making table actually. 500 यूनिट परचेज किए हैं 10 फरवरी को और एक यूनिट की कीमत 25 रुपए, तो कितना रुपए हुए, टेल मी। So 500 परचेज किए, 25 रुपए यूनिट, तो हाँ 12,500 सर। 12,500 ठीक है, परचेज कर लिया। इश्यू हमने इस डेट को कुछ किया नहीं है। अब मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा है, 1020 रुपए के रेट के हिसाब से 1000 यूनिट पहले पुराना गोडाउन में पड़े हुए हैं। गोडाउन समझते हो ना, डू यू नो व्हाट, मतलब जहाँ पे मेरा स्टॉक का यू नो वेयर हाउस, राइट। तो वेयर हाउस में मेरा कितना पड़ा हुआ है, 1000 यूनिट तो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस था। 500 यूनिट मैंने और परचेज कर लिए, तो कितना यूनिट हो गए, 1500 यूनिट हो गए ना। तो 10 फरवरी को मेरे बैलेंस में कितना दिखा रहा है, 1000 यूनिट 20 रुपए के रेट के हिसाब से 20,000 रुपए। 500 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 12,500। उसके बाद बेटा 13 मार्च को परचेज किया 400 यूनिट, कितने 400 यूनिट परचेज किए हम और एक यूनिट की कीमत 2200 रुपए है। एक यूनिट की कीमत कितनी, 2200 रुपए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा कितना आ गया, 8,800, ठीक है। तो मेरे गोडाउन वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, एक पड़ा है 20 रुपए के रेट के हिसाब से 1000 यूनिट, दूसरा पड़ा है 25 रुपए के रेट के हिसाब से 500 यूनिट और तीसरा जो पड़ा है मतलब गोडाउन में 22 रुपए के रेट के हिसाब से 400 यूनिट पड़े हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, 20 मार्च को क्या क्या इश्यू कर रहा है, इश्यू कितना कर रहा है बच्चे वो, 20 मार्च में सोल्ड कर रहा है 1200 यूनिट। कितना कर रहा है बेटा, 1200 यूनिट सोल्ड कर रहे हैं। तो पहले किसका, अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड पहले कौन सा रेट का माल निकालेंगे। फीफो मेथड में देखो बता रहा नहीं है, सोल्ड 20 मार्च को सोल्ड करा है 1200 यूनिट बेचे। तो पहले अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड पहले कौन सा वाला स्टॉक निकालूंगा, कौन सा वाला रेट का माल निकालूंगा। ले मैं लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूं, पहले मैं पुराना स्टॉक निकालूंगा फर्स्ट, जो मेरे पास पहले स्टार्टिंग में जो आया था पुराना वाला, जैसे अंदर पुराना वाला स्टॉक निकालूंगा जिसकी कीमत इस वाले रेट का 20 रुपए रेट के हिसाब से, ये वाला समझ में आ रही है। तो 1000 यूनिट मैंने इस वाले रेट के ले लिए, तो 1000 यूनिट रेट ले लिए मैंने, कौन सा वाला बेटा, पुराना वाला रेट ले लिया। वी आर फॉलोइंग द फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले स्टॉक आया था, ये बात हिंदी में कहीं लिख लो, अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड जो पहले स्टॉक आया था पहले उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ले मैं में समझ लो, जो पहले स्टॉक आया था, जिस रेट का माल आया था पहले उसको निकालने की कोशिश करेंगे।
अकॉर्डिंग टू फीफो मैथड। तो यहाँ पे 1200 यूनिट जब हमें सोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1200 तो 1000 यूनिट तो मैं 20 रुपए वाले रेट के ले लूंगा। 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 20,000। बाकी कहाँ से लूंगा बेटा, कौन सा वाला, इस वाले रेट का। इस वाले रेट का कितना लूंगा, 200 इस वाले रेट के लिए 25 रुपए पर यूनिट का, तो कितना हो गया 5000 रुपए। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा बेटा 300 यूनिट्स। कार्तिक समझ में आ रही बात, ऋतिक? तो यहाँ पे बैलेंस समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, सर सेल का एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। क्या सर यही वाला पार्ट। 20 मार्च वाला? जी सर, सर जहाँ से वो बेचना शुरू किया है, मतलब माल निकालना स्टार्ट किया जाए। वो बेटा कितना यूनिट बेच रहा है बताओ पहले, सर 1200। और कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, सर फीफो। फीफो मैथड। FIFO सर। फीफो मैथड क्या कहता है कि जो सर पहले जो पहले रेट का माल आया होगा आपके गोडाउन में, पहले उस वाले रेट को निकालेंगे। तो पहले कौन सा आया था सबसे पहले, सर ये जो 1000 में, ये जो क्वांटिटी जिसकी 1000 थी। हाँ, ये अलग अलग मैंने रेट के एक तरीके से बोरी समझ लो, यूरोप सैक्स बोरी समझ लो कि 25 रुपए रेट का माल 1000 यूनिट अलग रखे हैं, 20 रुपए रेट का 1000 यूनिट अलग रखे हैं, 25 रुपए रेट के हिसाब से 500 यूनिट अलग रखे हैं, और 22 रुपए रेट के हिसाब से 400 यूनिट अलग रखे हैं। तो पहले मैं कौन से वाली बोरी से निकालूंगा माल, तो जो पहला आया था, पहले कौन सा आया था बताओ? सर ये 1000 वाला, सर जो हाँ। 1 जनवरी को था। हाँ, वेरी नाइस। सर जो बैलेंस में है। हाँ हाँ, तो 1000 यूनिट 20 रुपए के रेट के हिसाब से मैंने ये निकाल दिए। अब 200 यूनिट मुझे अभी भी चाहिए ना, 1200 यूनिट बेच रहे हैं। अब तो अब किसकी बारी आएगी? सर जो दूसरा वाला है 500 यूनिट। यस, हाँ, यही चीज फॉलो करनी है। और रेट क्या है 500 यूनिट वाला का? 25 सर रुपए। 25 रुपये। तो 25 रुपए ले लो, ले लिया। Yes, sir. 1200 यूनिट Yes. बेच दिया हमने। यस सर। अब 500 में से 200 चले गए, तो कितना बचे बताओ उसमें? 300। सर 300। और रेट क्या है उसका? सर 25। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना बचा बैलेंस बताओ? 7000 500। 7500। और इस वाली स्टॉक की भी बारी आई नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? इस वाले सेट को मतलब कुछ छेड़खानी करेंगे नहीं, अगर नहीं मान लेंगे। 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू 8800। समझ में आ रही बात? अब फिर से 6 अप्रैल को फिर कहानी हुई, 500 यूनिट बेची, 500। तो किसकी बारी आएगी पहले बताओ? सर जो 300 बचे थे। हाँ, 300। पहले पुराना वाला स्टॉक निकालेंगे। यस सर। पुराना वाला स्टॉक कौन सा वाला? 300 यूनिट। और रेट कौन सा लेंगे बेटा? सर 25 रुपये। 25 रुपए बेच दिया। अभी मेरे को कितना और यूनिट चाहिए? सर 200। 200 यूनिट चाहिए। तो 200 कौन से वाले रेट की बारी आई? सर भाई जो 400 बचे थे, 22 रुपये। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर 200 यूनिट मैंने इस वाले से निकाल लिया, 400 यूनिट में से 22 रुपए के रेट के हिसाब से बेच दिया। तो 7500, 4400। तो 400 में से जब 200 यूनिट चले गए तो कितना बचा बेटा यहाँ पे? 200 सर यूनिट। 200। बहुत बढ़िया। और मल्टीप्लाई बाय 22। सर 22। तो कितना हो गया बैलेंस? कितना बचा है मेरे गोडाउन में, वेयर हाउस में? 4400। 400। ठीक है, अलग अलग हमने मिक्स नहीं करा, हमारे यूनिट्स को मिक्स नहीं करा, हमने अलग अलग करके रखा। उसके बाद 12 मई को क्या किया मैंने? परचेज किया। 12 मई को क्या किया बेटा? परचेज। कितना परचेज किया? 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 10,000। इशू में कुछ नहीं आएगा, डैश डैश। और बैलेंस कितना बचा? 200 यूनिट तो पुराना वाला पड़ा है, 200 यूनिट पुराना पड़ा है,
मल्टी 22 रुपए के रेट के हिसाब से 4,400, ठीक है। और Yes. 400 यूनिट मैंने और परचेज कर लिए 25 रुपए के रेट के हिसाब से, तो कितना आ गया बैलेंस? 10,000। 10,000। ठीक है। अब फिर से समझते हैं कहानी को, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। फिर कहता है 30 जून को क्या किया, 500 यूनिट इसने बेचे। कितना है? 500 यूनिट। कितना Yes, बेटा? 500 यूनिट बेचे। तो पहले फीफो के हिसाब से पहले कौन सा वाला स्टॉक निकालेंगे बेटा, बताओ? सर वो जो 200 बचे थे। आज पुराना वाला स्टॉक पहले 200 Yes, बचे sir. थे। 400 वाले को नहीं छेड़ेंगे। क्यों 400 वाले को क्यों नहीं छेड़ेंगे? पहले हमें वी आर फॉलोइंग द फीफो प्राइस मेथड, यानी कि हमें जो पुराना स्टॉक पड़ा है पहले उसे निकालेंगे। ठीक है। तो 400 Yes, sir. 500 यूनिट जब बेच रहा है 30 जून को, तो पहले कौन सा वाला स्टॉक निकालेंगे बच्चे? पुराना वाला स्टॉक निकालेंगे। तो 200 यूनिट 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया? 4,400 यूनिट। बाकी के 300 यूनिट कहाँ से निकालेंगे लेंगे बेटा? सर वो जो अभी परचेज किया था। हाँ 400 यूनिट। 400 यूनिट रेट 25 रुपए के हिसाब से 300 यूनिट हमने यहाँ से ले लिए। हमारे कितना हो गया टोटल? 500 यूनिट हमने इशू कर दिया, बेच दिया। ठीक है, इशू कर दिया। Yes, sir. तो 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया? 7,500। और बैलेंस कितना बचा स्टॉक में? मतलब स्टॉक में कितना बचा बैलेंस? 100 सर। Sir, 100। सभी बच्चे 100 बताओ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो 200 मैंने पुराने वाला स्टॉक ले लिया 22 रुपए के रेट के हिसाब से, 4,400। अभी 300 यूनिट की कमी पड़ रही थी, तो मैंने इस वाले यूनिट से निकाल लिया 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25, so 7,500। बैलेंस कितना बचा बेटा? कौशल? सर 100। 100 सर। 100। हाँ रुचना अनुकृति नहीं बोल रहे आज लोग, रिस्पॉन्ड करें। 100 यूनिट बचे। और रेट कौन सा है बेटा? रेट सर 25 मल्टीप्लाई। sir. वेरी नाइस, रिस्पॉन्ड करो प्लीज। जिसको समझ में भी आ रहा है सारे बच्चे रिप्लाई करें। 100 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 2,500। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन की डिमांड थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास हैंस आंसर लिखे, हैंस उसके नीचे हैंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास हमारे गोडाउन में कितना माल रह गया? 1,100 सर 100 यूनिट। मल्टीप्लाई बाय, और एक यूनिट की कीमत कितना रुपए थी बेटा? 25 रुपए। तो 100 यूनिट थी मल्टीप्लाई बाय 25 यूनिट्स कितना आ गया बेटा? 2,500। लिखे हैं 25 बन जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड रिस्पॉन्स कौशल, वेरी गुड। Hence, value of closing stock equal to 100 units multiplied by 25 equal to 2,500। ठीक है। कॉस्ट दूसरा रिक्वायरमेंट थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो लिखे वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 25,000 प्लस 11,900 प्लस 11,900 इक्वल टू 48,880। ठीक है, क्लियर है? कैसे निकाला था? जो हमने ये सारी जो वैल्यू है ना, ये सारी 20,000 5,000 7,500 4,400 उसके बाद 4,400 7,500 इन सारे जो बेचा है उसकी वैल्यू हमने ऐड कर दी। तो ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ये वाला मैथड हमने अभी जो न्यूमेरिकल पार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। कहीं पे हिंदी में बेटा ये बात लिख लें मेरी स्टेटमेंट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था अभी, जो पहले पुराना वाला स्टॉक पड़ा होता है किसी भी रेट का होगा, पहले हम पुराना स्टॉक निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टॉक की बारी आएगी। जैसे यहाँ पे हमने इशू किया था, यहाँ पे हमने 1200 यूनिट इशू करते हैं, तो पहले पुराना वाला रेट का माल निकाला था, उसके बाद उसके बाद वाला यहाँ पे भी देखो हमने 500 यूनिट बेचे थे, पहले पुराना वाला स्टॉक निकाला था, बैलेंस था 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू 4,400 एंड फिर 300 और मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 7,500। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मेरे साहब यानी था किसी को कोई डाउट है? कौशल, कृष्णा, अनुकृति वर्मा? नो डाउट सर। समझ में आ गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सिंपल है, यानी कि पहले जो पुराना वाला स्टॉक होगा पहले उसको निकालने की कोशिश
करेंगे, उसके बाद वाला, ठीक है। एक पार्ट हमने कर लिया। नाउ मूव ऑन टू द वी विल डू द न्यूमेरिकल पार्ट विद द हेल्प ऑफ लीफो। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? अब कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बेटा? लीफो मेथड। कौन सा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या मतलब है? जो इसका रिवर्स चलेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका रिवर्स चलेंगे। बात समझ आ रही है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में कह रहे हैं जो पुराना पहले स्टॉक है पहले उसको निकालने की कोशिश, पहले उसको निकालेंगे। उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में बच्चे क्या होता है कि जो हमने लेटेस्ट माल आया था जिस रेट का भी हो, पहले लेटेस्ट वाले स्टॉक को निकालने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही कौशल? ऋतिक? यस सर। जो लास्ट इन, देखो लास्ट में मतलब जो लेटेस्ट स्टॉक मेरे गोडाउन में आया था पहले उसको निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ डू द न्यूमेरिकल पार्ट विद द हेल्प ऑफ LIFO मेथड, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन विल बी द सेम, सॉल्यूशन हम दूसरे मेथड से करेंगे। लिखें फिर मेक द फॉर्मेट स्टोर लेजर कार्ड LIFO प्राइस मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डोंट टेक लाइटली एंड इट्स वेरी वेरी इजी और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखें स्टोर लेजर कार्ड LIFO प्राइस मेथड, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए बेटा। परचेज डेट पर्टिकुलर, परचेज में क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। बैलेंस है बेटा क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। 1 जनवरी को बेटा था ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस, पर्टिकुलर में लिखे बाय पर्टिकुलर में बैलेंस BD 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20। स्टॉक पड़ा था मेरे गोडाउन में ऑलरेडी, ओपनिंग स्टॉक मेरे गोडाउन में 1000 यूनिट 20 रुपए के रेट के हिसाब से पड़े थे, तो कितना हो गया? 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद बेटा 500 यूनिट मैंने क्या कहते हैं परचेज किए थे। 500 यूनिट जब मैंने परचेज किए 25 रुपए के रेट के हिसाब से, तो 12,500 परचेज कर लिया। तो मेरे गोडाउन में हमें दोनों गुड्स को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये समझ लो अलग अलग रख रहे हैं गोडाउन में। 1000 यूनिट 20 रुपए के रेट के हिसाब से अलग रखा हुआ है। 500 यूनिट जब मैंने परचेज किए, 500 यूनिट जब मैंने परचेज किए 25 रुपए के रेट के हिसाब से, जब हमारे फैक्ट्री के अंदर माल आया, मेरी कंपनी के अंदर माल आया 500 यूनिट 25 रुपए के रेट के हिसाब से 12,500, तो उसको वेयर हाउस में अलग रखना है, अलग मिक्स नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मिक्स नहीं करना है। अगर मिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि पहले कौन सी रेट का माल था। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1000 यूनिट को और 500 यूनिट को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो कि किस रेट का माल कौन सा था। बात समझ में आ रही है? तो रेट गुड्स को मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना है, सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन सी रेट का कौन सा माल है, ताकि जब हम इशू करें तो हम इजीली पता चल जाए कि कौन से रेट का माल कहाँ पे है, ठीक है। टैग लाइन, जैसे आप शॉप की जनरल स्टोर पे जाते हैं तो देखा होगा चावल की पे लिखा होता है 35 रुपीज पर केजी, ठीक है। 80 रुपीज पर केजी, 120 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी लिखा हुआ होता है ना। अगर वो मिक्स कर देगा तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना शॉपकीपर के लिए। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से आपने जब आपका जो स्टॉक आ रहा है, सेम मैनर जब आपका स्टॉक आ रहा है तो आपका जो वेयर हाउस है 1000 यूनिट 20 रुपए के रेट के हिसाब से तो पड़ा है 20,000 रुपए का माल। 500 यूनिट जब मैंने परचेज किए 25 रुपए के रेट के हिसाब से, तो 12,500 रुपए का माल मेरे को अलग रखना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप तक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। ज़्यादा टफ वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ, I'm just trying my best, I'm trying my best to understand so that you can easily understand the concept, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1000 यूनिट पड़ा हुआ था 20 रुपए के रेट के हिसाब से 20,000
500 यूनिट जब मैंने परचेज की 25 रुपए के रेट के हिसाब से, तो उसको अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है। बस इतनी सी बात याद समझ में, इतना सा दिमाग, इतना तो समझ सकते हो ना। तो 500 यूनिट के हिसाब से, यूनिट 25 रुपए के रेट के हिसाब से 12,500। उसके बाद 13 मार्च को क्या किया है, 400 यूनिट और परचेज किए हैं 22 रुपए के रेट के हिसाब से। कितनी वैल्यू हो गई, 8,500, 8,800। तो मेरे गोडाउन में कितने तरह का माल आ गया। मेरे वेयर हाउस में, मेरे गोडाउन के अंदर, जो फैक्ट्री के अंदर जो मेरे वेयर हाउस है, मेरा जो गोडाउन है, उसमें तीन कैटेगरी का माल आ गया। एक आ गया 20 रुपए के रेट के हिसाब से 1000 यूनिट, 25 रुपए के रेट के हिसाब से 500 यूनिट्स पड़े हैं। तीसरा 22 रुपए के रेट के हिसाब से 400 यूनिट 13 मार्च को मैं परचेज करके लेकर आया हूँ। उसकी कीमत कितना है, 8,800। ठीक है, 3 कैटेगरी का माल हो गया। एक 20 रुपए रेट के हिसाब से, दूसरा 25 रुपए के रेट के हिसाब से गोडाउन में माल पड़ा है 500 यूनिट। एक तीसरा जो पड़ा है 22 रुपए के रेट के हिसाब से मेरा माल पड़ा है 400 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब खेल समझते हैं। 20 मार्च को क्या हुआ, 20 मार्च को देखें, क्वेश्चन पे जाइए। 20 मार्च को क्या हुआ बेटा, सोल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है रोशना, अनुकृति वर्मा, ऋतिक, कौशल, सारे बच्चे रिप्लाई करें। देखो ध्यान से समझने वाली बात है, बस ध्यान, बी फोकस। 20 मार्च को 1200 यूनिट बेच रहे हैं, मतलब सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जब सोल्ड कर रहे हैं बेटा, तो बेटा कौन से वाले स्टॉक को पहले निकालेंगे, अंडर द LIFO मैथड। बताइए, 1200 यूनिट जब मैं बेच रहा हूं, हम कौन से मेथड फॉलो कर रहे हैं, LIFO मैथड, LIFO प्राइस मैथड। तो पहले कौन से वाले स्टॉक की बारी आएगी, ऋतिक बोलो। तो 400 वाले की। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? तो कौशल। कौशल, वेरी नाइस। पहले किसकी बारी आएगी बेटा, कृष्णा? So 400. So हाँ। 400. क्यों, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम? So हम LIFO method। last in first out. हाँ, लास्ट इन। तो लास्ट कौन सा था बेटा? 400 units. हाँ, तो 1200 यूनिट जब मैं सोल्ड कर रहे हैं, तो पहले जो लेटेस्ट स्टॉक जो आया था 13 मार्च को, पहले उसको निकालेंगे, तो 400 यूनिट तो मैंने ये वाले ले ली, 400 यूनिट तो मैंने इस वाले यूनिट रेट के ले ली। 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू 8,800। कौशल, ठीक है बच्चे। अब यस सर। 1200 में से 400 गए, अभी मेरे पास कितनी कमी पड़ रही है, 800 यूनिट की। 800, तो अब किसकी बारी आएगी बताओ? 500 वाला 10 फरवरी। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। 500 यूनिट के 500 इस वाले रेट की बारी आएगी, इस वाले रेट की। तो 500 यूनिट मैंने ले ली 25 रुपए के रेट के हिसाब से। कौशल, कितना आ गया अमाउंट बेटा? कौशल, तो 12,500। 12,500। अभी भी मेरे पास कितनी स्टॉक की कमी बढ़ रही है? 300। तो अब किसकी बारी आएगी? तो जो हमारे पास बैलेंस में था। हाँ, बैलेंस में था। तो 300 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, बोलो? 6,000 सर। 6,000। वेरी नाइस कौशल, गुड। गिव क्लैप फॉर हिम। भाई बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कौशल, फोकस कर रहे हैं। सारे बच्चे फोकस करें ध्यान से। आई होप यू दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर, अंडर दिस मेथड पहले 400 यूनिट ले लिया मैंने, 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 28,800, 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 12,500। उसके बाद बेटा मैंने 300 यूनिट यहाँ से ले लिया, 300 मल्टीप्लाई बाय 26,000। तो बैलेंस बेटा कितना बचा, बताओ बैलेंस गोडाउन में कितना बचा? परवेज, मिस्टर परवेज, आर यू देयर? बैलेंस कितना बचा? सुलेमान, हाँ, बैलेंस कितना बचा बेटा? कौशल आप बताओ। 700. तो 700 यूनिट सर। 700 यूनिट और किस रेट के हिसाब से? 20। तो कितना हो गया? 4,000। सो 14,000। 14,000। ठीक है। अब 6 अप्रैल को क्या हुआ? 500 यूनिट का 500 यूनिट परचेज इशू करा है। 500 यूनिट इशू करा, कौन सा वाला रेट लेंगे? इस वाले रेट का 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू हाउ मच?
10,000 सर 10,000. 10,000 ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने परचेज करे 400 यूनिट, हमने परचेज करे, तो परचेज में डाल दें 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20, तो इशू में डैश डैश परचेज 200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 4,000। उसके बाद बेटा 400 यूनिट हमने अभी लेटेस्ट परचेज किए 12 मई को, तो बैलेंस कितना, बैलेंस बचा 200 मल्टीप्लाई बाय 20 4,000, 400 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 10,000। ठीक है। उसके बाद इशू करा है मैंने, इशू कितने करे क्वेश्चन पे जाओ, इशू करे हैं, इशू करे 530 जून को मैंने सोल्ड करा है, कितना 30 जून को मैंने सोल्ड करा है, आ जाओ 30 जून को सोल्ड करा, 500 यूनिट सोल्ड करे, तो पहले कौन सा निकालेंगे, स्टॉक में निकालूंगा 400 यूनिट निकालूंगा, क्वेश्चन 400. 400, Yes sir. 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 10,000 और 500 100 यूनिट यहाँ से ले लिया, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 2,000। तो बैलेंस कितना बचा क्वेश्चन, 100 sir. 100 units multiplied by 20, तो बैलेंस 2,000, hence 2,000. 2,000, hence value of closing stock is equal to 100 units multiplied by 20 equal to 2,000। उसके बाद लिखे cost of goods sold equal to, so 27,300 plus 10,000 plus 12,000 equal to 49,300, 49,300। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद इसी क्वेश्चन को, क्लियर है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसी क्वेश्चन को तीसरे मेथड से करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड, ये सारे बच्चों ने कर लिया, अनुकृति कृष्णा, यस सर कर Yes sir, done. ठीक है। स्टोर लेजर फिर से फॉर्मूला बनाइए, थर्ड कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। हाँ बेटा फॉर्मेट बनाइए, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इंपॉर्टेंट है। लिखें डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट इश्यू में, उसके बाद बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, सेम फॉर्मेट अप्लाई, बट प्राइस रेट चेंज हो जाएंगे इसमें। देखो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में मैं आपको रेट निकालना सिखाऊंगा कि न्यू रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, न्यू रेट कैसे निकालते हैं। सॉरी, ठीक है, shall I explain? लिखो बेटा, लिखो डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, हेडिंग, हेडिंग फिर से लिख ले, स्टोर लेजर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, परचेज इश्यू बैलेंस, डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। 1 जनवरी को बेटा हमारे गोडाउन के अंदर पहले से स्टॉक पड़ा था 1000 यूनिट, 20 रुपए के रेट के हिसाब से माल पड़ा था 20,000। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें कुछ टफ नहीं है बेटा। उसके बाद 10 फरवरी को क्या हुआ, 10 फरवरी को क्या हुआ बेटा, 10 फरवरी को बेटा क्या हुआ, 500 यूनिट परचेज किए, 500 यूनिट परचेज किए हैं, तो कितने रुपए का माल आया मेरे फैक्ट्री के अंदर, मेरे वेयर हाउस में 12,500 का, 12,500 रुपए का आ गया। अब बेटा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में ये समझने की कोशिश करो, देखो बहुत सारी बुक्स में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा है, डिफरेंट लैंग्वेज यूज करी है। बस मेरी कोशिश ये है कि बेटा जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी समझना होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एज अ फैकल्टी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट।
बहुत सारे वर्ड में हिंदी टर्मिनोलॉजी बहुत ले मैन लैंग्वेज में कोशिश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, सो बेसिकली जब 10 फरवरी को 500 यूनिट जब मैंने परचेज किया 25 रुपए के रेट के हिसाब से 12,500 रुपए का माल आ गया। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि जो पुराना स्टॉक पड़ा था फैक्ट्री के अंदर, सपोज करो फैक्ट्री के अंदर पहले से ही स्टॉक पड़ा था 1,000 यूनिट पड़ा है 20 रुपए के रेट के हिसाब से 20,000 रुपए का माल पड़ा था। 500 यूनिट जब मैंने परचेज किया तो पुराने यूनिट्स, ठीक है, और नए वाले जो परचेज किया है उसको क्या कर देना है बेटा, मिक्स कर देना है। वेटेड एवरेज में क्या करना है बेटा, मिक्स करना है। पुराना स्टॉक और नया स्टॉक को क्या करना है बेटा, मिक्स कर देना है। क्या करना है बेटा कौशल, पुराना स्टॉक सर ऐड कर देना है, सर मिक्स ऐड करना है। पुराना स्टॉक मान लो आपकी सैक में, जिसे हिंदी में बोरी कहते हैं, 1,000 यूनिट थे, ठीक है, समझ लो राइस है 1,000, राइस नहीं कुछ और ले लेते हैं, 1,000 यूनिट पड़े, 500 यूनिट आपने और परचेस किए। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है कि पुराना स्टॉक और नया स्टॉक को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अब प्रॉब्लम ये दिमाग में आई कि भाई इनका रेट तो इनके अलग अलग थे, अब नया रेट कैसे निकाले। हाँ या यस और नो। जब पुराना स्टॉक और नया स्टॉक को जब मैंने मिक्स कर दिया तो द प्रॉब्लम इज दैट कि नया रेट कैसे निकलेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पुराने वाले स्टॉक का क्या रेट था और नए वाले स्टॉक का रेट क्या था। तो इसका सॉल्यूशन वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में ये होता है, वी हैव टू कैलकुलेट एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेट। और न्यू रेट को समझना बहुत जरूरी है। कैसे निकालते हैं न्यू रेट, कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। आफ्टर लीविंग 2 or 3 1 पेजेस, वहाँ पे बेटा नेक्स्ट पेज पे लिखें, इंपॉर्टेंट नोट लिखें, व्हेन वी आर फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। कैसे निकालते हैं बेटा, व्हेन वी आर फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इन दैट केस न्यू रेट इज कैलकुलेटेड फॉर यूनिट इन सच अ मैनर। कैसे निकालते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू रेट पर यूनिट इक्वल टू अमाउंट प्लस अमाउंट जोड़ देंगे, क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। तो पहले वाला 20,000 प्लस 12,500 डिवाइडेड बाय कितना, 1,500 यूनिट, 1,000 यूनिट पुराने वाले यूनिट्स और नए वाले यूनिट कितने 500, कितना 32,500 को डिवाइड कर देंगे 1,500 से, तो कितना आ गया 21 रुपये 67 पैसे पर यूनिट, 21 रुपीज 61 पैसा। ये जो रेट बेटा निकला है, ये वाला रेट कैसे निकला है, इस रेट को निकालने का तरीका समझा रहा हूं मैं, फिर से समझ लो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेड एवरेज में क्या हुआ कि पुराना स्टॉक 1,000 यूनिट और नए वाला स्टॉक 500 यूनिट, ठीक है बेटा, तो उसको मिक्स कर दिया, तो आपको नया रेट कैसे निकलेगा, तो ये 20,000 यूनिट प्लस 20,000 रुपये प्लस 12,500 रुपये डिवाइडेड बाय 1,500 यूनिट, तो नया रेट कितना आ गया 21 रुपीज 61 पैसा। ठीक है, नया रेट आ गया। कैसे निकाला है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए मैंने आपको वर्किंग में बताया है कैसे निकालते हैं न्यू रेट। हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेट फॉर द पर यूनिट इक्वल टू अमाउंट को अमाउंट में जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। तो 20,000 प्लस 12,500 डिवाइडेड बाय 1,000 प्लस 500 यूनिट, तो कितना हो गया बेटा 21.67 पैसा पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी 21.67 पैसा। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ गया 32,500, कितना आ गया 32,500। उसके बाद 13 मार्च को बेटा 400 यूनिट इसने और परचेज करे हैं, 400 यूनिट परचेज करे हैं 22 रुपये के रेट के हिसाब से, तो कितनी वैल्यू आ गई 8,800। मेरे गोडाउन में 32,500 का माल ऑलरेडी पड़ा था। अब क्या करा, 500 यूनिट पहले के पड़े हुए थे, 400 यूनिट मैंने और परचेज किए हैं, तो मेरे गोडाउन में कितने यूनिट्स हो गए बेटा कौशल, So 1,900 so हाँ
अब नया रेट कैसे निकालेंगे? सर 21.70। टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। हाँ, यहाँ पे बताया है मैंने कैसे निकाला। ये 20, ये वाला रेट मैंने निकाल के बताया है। ये 21.74 कैसे निकाला? यहाँ पे जाइए, सर अगेन कैलकुलेट द न्यू रेट। टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी सर। हाँ, टोटल अमाउंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि टोटल अमाउंट कैसे निकाला है, तो मैंने इसको बाइफरकेट करके बताया है। अमाउंट था बेटा 32,500 पुराना, 12,500 का नया वाला। तो नए पुरानी क्वांटिटी 1500 यूनिट, नई क्वांटिटी 400 यूनिट्स। तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन 45,000 डिवाइडेड बाय 1900 यूनिट्स, हाउ मच यू विल गेट? आपको आ जाएगा 21 रुपये 74 पैसे। 21 रुपये 74 पैसे पर यूनिट। 21 रुपये 74 पैसे, ये नया रेट निकल गया। तो इसकी जब ये रेट आ गया 1900 रुपये, 1900 क्वांटिटी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 21.74 पैसा मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 41,300। ठीक है, उसके बाद बात समझ में आ गई, नया रेट निकालना आ गया। बस इसी को समझना इंपॉर्टेंट था। न्यू वेटेड एवरेज में न्यू रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, 20 मार्च में बेटा 1200 यूनिट मैंने बेची है। 20 मार्च को 1200 यूनिट बेची, तो मेरे पास 1900 यूनिट्स गोडाउन में वेयर हाउस में पड़ी थी। 1200 यूनिट जब मैंने बेच दी तो कितना बचा बेटा? एक रेट कितना है? 21.74 पैसा। तो कितना रुपए का माल बेच दिया, इशू कर दिया? 26,088 रुपीज। बैलेंस कितना बचा? 1900 यूनिट्स में से 1200 यूनिट्स जब इशू कर दें तो बेटा कितना बचा? 700 यूनिट्स। और रेट कितना है? 21.74 पैसा। इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेयर हाउस में मेरा कितना अमाउंट पड़ा? बचा 15,218, 15,218। उसके बाद 6 अप्रैल को बेटा क्या हुआ? 6 अप्रैल को 500 यूनिट और इशू करी है। 500 यूनिट और इशू करी है। 500 यूनिट जब मैंने इशू कर दी, कितना आ गया? 21 रेट बेटा कौन सा गोडाउन में पड़ा हुआ है? 21.74 पैसा। 21.74 पैसा जब इस रेट का ले लिया माल, उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो बेटा कितना आ गया? 10,870। 700 बैलेंस पड़ा था, 500 यूनिट मैंने इशू कर दी। 500 मैंने इशू कर दी, तो बैलेंस कितना बचा मेरे वेयर हाउस के अंदर? 200 यूनिट्स। कितना बेटा? 200 यूनिट्स। 200 यूनिट मल्टीप्लाई 21.74 पैसा, कितना आ गया? 4,348। उसके बाद बेटा क्या हुआ? 12 मई को 400 यूनिट परचेज किए मैंने। 400 यूनिट परचेज किए और एक यूनिट की कीमत 25 रुपये। एक यूनिट की कीमत 25 रुपये। 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू हाउ मच? 10,000 रुपीज। हाउ मच बेटा? 10,000 रुपीज। कितना हुआ? 10,000 रुपये। फिर न्यू रेट कैसे निकालेंगे? कौशल, न्यू रेट 200 यूनिट पहले का पड़े हुए हैं, 400 यूनिट मैंने और परचेज किए हैं। हाँ बताओ सर 10,000 प्लस 4,348 को ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 600 सर। यस वेरी नाइस। हाँ, फिर से मैंने न्यू रेट निकाल के बताया है। न्यू रेट कैसे निकाला है? अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, कौशल ने डायरेक्टली बता दिया। ही इज वेरी डूइंग गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं कौशल। आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। हाँ बेटा परवेज, आर यू देयर? अनुकृति वर्मा आज शायद क्लास में नहीं है, वो बच्ची अच्छा रिस्पॉन्स करती है। बेटा रोशना आप भी बताओ, अगर कोई डाउट तो नहीं है। सर ये जो सेकंड वाला आपने न्यू रेट कैलकुलेट किया है, इसमें 32,500 में हम 8,800 ऐड करेंगे ना? आपने 12,500 ऐड कर रखा है। कौन सा वाला पॉइंट? सेकंड पॉइंट? यस सर, उसमें हाँ सर, ये 32,500 कैलकुलेशन में। मिस्टेक है। हाँ राइट। 32,500 प्लस ये सर 13 मार्च को हमने जो परचेज अच्छा, हाँ। किया है वो 8,800 का है ना। अच्छा ठीक है ओके। अब ये वाला रेट निकालो कौशल। वेरी नाइस। 23.91, 23 रुपये 91 पैसे। कैसे निकाला बेटा? बता देता हूँ मैं। कैसे निकाला? 4,348 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1,600 यूनिट्स, तो कितना आ गया? 23.91 पर यूनिट। ठीक है, कितना आया बेटा?
तो 23.91, तो कितना, do the multiplication 600 multiply by 23.91, how much you will get? आपके पास बेटा आ जाएगा 14,346। उसके बाद 30 जून को बेटा हमने इशू करा तो बेटा कौन सा बताइए रुशना, 500 यूनिट जब इशू करेंगे कौन से रेट का माल इशू करेंगे बताइए। पिछले वाले 23.91। परवेज आप बताइए, परवेज आर यू देयर? ऋतिक, सुलेमान, यस फातिमा, सर। बताइए बेटा 500 यूनिट जब इशू करें 30 जून को। अच्छा ठीक, इसके पहले वाले रेट का करेंगे जो हमने खरीदा था 12 मई को, यानी कि 23.91 रुपीज। अब बेटा ये बताओ ऋतिक, एक 23.91 कैसा निकाला, ये नया रेट मैंने कैसा निकाला था? हाँ ये वाला सर, रेट। नया रेट आप, हाँ सर, अभी आपने परचेज किया था 12 मई को 400 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, और फिर 6 अप्रैल को आपके पास जो बैलेंस बचा था वो था 4,348, तो आपने 6 अप्रैल के बैलेंस को ऐड किया 12 मई के परचेज के साथ, और उसके बाद जो क्वांटिटी थी 6 अप्रैल को जो क्वांटिटी बची थी वो 200 यूनिट थी, और 12 मई को जो क्वांटिटी खरीदी वो 400 थी, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास 600 है और टोटल बैलेंस आपके पास 14,346 है, तो आपने टोटल बैलेंस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 23.91। वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया बेटा, बोलो? 14,346। उसके बाद 30 जून को हमने इशू कराए 500 यूनिट, बोलो? यस सर, 500 यूनिट इशू किया है, तो 12 मई को जो खरीदा था हमने उसमें से इशू करेंगे क्योंकि हमारे पास वही बैलेंस बचा है। हाँ वही बैलेंस बचा है, तो कितना इसका रेट कितना है? 23.91। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 11,955। स्टॉक कितना बचा फिर? 100 यूनिट्स। रेट क्या है इसका? 23.9। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 2390। 2390। यस सर 23.90 क्यों सर, 9 तो होना चाहिए वो। बेटा वो फिगर आउट कर दिया ना, 95 पैसा होते तो फिर 91 कर देते हैं, पैसे है ना वो पैसे बड़ा हो गया ना। ओके सर। 91 पैसे तो वो लोअर डिजिट की तरफ लिया है 90, अगर वो 96 होते तो उसको हम कितना कर देते फिर 20 यस सर 24 कर देते फिर। अगर वो 23 रुपए 96 पैसे होते तो उसको 24 रुपए फिगर आउट कर देते। समझ में आ रही बात? यस सर ओके सर। उसके बाद हैंस लिखे हैं, हैंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स। सारे बच्चे को समझ में आ गया? ऑल गाइस? यस सर। सर हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं फिगर्स को? नहीं ऐसे रहने दो। दिस तीनों मेथड बच्चे समझ में आ गए सारे बच्चों को? फीफो मेथड, लीफो Yes, sir. मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। इज देयर एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बेटा इन दिस। कुछ ही बच्चे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 7-8 बच्चे ज़्यादा अच्छे से रेस्पॉन्स कर पाते हैं, बाकी पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू सी। सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इज देयर एनी डाउट कौशल? नो सर। नो सर। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े। लिखे हैंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 100 यूनिट। 100 यूनिट्स। परवेज नहीं है हमारी क्लास में आज, पता नहीं बोल नहीं रही है। Hence value of closing stock equal to 100 units multiplied by 23.90 equal to 2390 and cost of goods sold equal to 49,070। वेटेड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मैंने आपको वर्किंग नोट समझाया था कैसे हमने रेट निकाला था। ये तीनों पॉइंट मैंने रेट बता दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को? इट इज क्लियर? इज देयर एनी Yes, sir. Yes, sir. डाउट? So you are having class also statistics?
सर मैच चलो तीनों मैथड फीफो हमने फीफो डिस्कस कर लिया, लीफो मैथड डिस्कस कर लिया, एंड वेटेड एवरेज भी डिस्कस कर लिया, and try to do with the help of this concept, try to do maximum question in as a homework. Okay, I will share some important question in a Google Classroom also, and to start solving. ठीक है, सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. ठीक है, I will share some important question and do as a homework. Right, and there is a last word from my side. These are the it is my responsibility as a faculty. It is my responsibility to motivate you. Follow these lines in your life: confidence and the hard work. Okay, confidence and hard work is the best medicines to kill the disease called failure. What does it mean? It will make you a successful person. What do you mean by confidence? Okay, whatever you are doing, you must have a confidence. Okay, so confidence and hard work is the best medicines. ठीक है, आपके अंदर confidence होना चाहिए, and you must do hard work. ठीक है, confidence and hard work is the best medicines to kill the disease called failure. कोई भी चीज, nothing is tough in this world. ठीक है, nothing is tough in this world. Just but the point is that you have to do a hard work. ठीक है, okay. So and nothing is tough in this world. Keep going, मेहनत करते रहें लाइफ में. ठीक है, to whatever the goals you are having, keep focused, keep working hard in achieving your goals. मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें. ठीक है, और रिजल्ट्स ईश्वर और अल्लाह देने वाला है. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, कीप हार्ड वर्किंग. ठीक है, एंड नेवर गिव अप योर ड्रीम्स. जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी लाइफ में आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, जो भी आपने अपने लाइफ में सोच रखा है, ठीक है, कि व्हाट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, कुछ आपका जो सपने हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेट करो और मेहनत करते रहे आप. ठीक है, सो नेवर गिव अप इन योर ड्रीम्स. ठीक है, सो कीप मेहनत करते रहे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो सर. हेलो. यस बेटा. हाँ सर, मैथ्स वाले टीचर हमारे पूछ रहे थे कि अगर सर को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए 10 मिनट या 20 मिनट, तो वो पहले से डिसाइड करके बता दें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्लास में डिले हो जाता है क्लास स्टार्ट करने में. तो अगर सर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप पहले से बता दें, तो हम उनको कह के रखें कि सर आप 20 मिनट के बाद ही क्लास स्टार्ट रखें. इधर से डिस्टर्बेंस नहीं होगा और उधर भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. फिर ठीक है, थैंक यू. आई विल टॉक. ओके, थैंक यू सर.